Hello everyone, welcome to my YouTube channel Animesh Classes by Anisha. In this video series, I am covering class 12th IP Term 2 syllabus, and for this I am referring to NCERT book. So this video is all about the basic concepts of SQL. This video can help those students who want to revise their basic concepts of SQL, or to those students as well who do not have any knowledge regarding the basic concepts of SQL, and this will help you to cover up your class 12 syllabus in a well manner. So let's start now. As we all know and discussed in previous video that SQL stands for Structured Query Language. It's a language which is used to interact with the database. It's a query language that can be used to access data from a database, and there are so many relational database management systems available in the market like MySQL, Oracle, SQL Server, but we are working on MySQL in our syllabus. So let us see the features of SQL first. SQL is case insensitive language. That means अगर आप small letters में लिखते हैं और capital letters में लिखते हैं तो SQL consider it as same. And another important thing is always end your SQL statement with a semicolon. So these are two important things that you need to consider. Now, next topic is data type and constraints in MySQL. Now we know that कि RDBMS में हम जो database बना रहे हैं, database manage कर रहे हैं, store कर रहे हैं, वो tables की form में कर रहे हैं, tables की form में या relations की form में, and in tables और relations we have columns and rows. तो एक कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर होगा वो उसका डेटा टाइप बताता है कि क्या इंटीजर वैल्यू होगी, क्या डेसिमल वैल्यू होगी, क्या आपकी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होगी. तो डेटा टाइप बेसिकली टेल्स की एट्रीब्यूट हैज़ विच काइंड ऑफ डेटा. सो कॉलम हम बोलें या फिर हम एट्रीब्यूट बोलें या फिर हम फील्ड बोलें, दैट इज़ अ सेम थिंग. सिमिलरली अगर हम रोज़ बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं या टपल्स बोलते हैं, दीज आर द सेम थिंग्स. ओके, क्वेश्चन में किसी भी टर्म को यूज़ किया हो सकता है. So you should be aware of all the terms. So different data types क्या हैं? The most two important data types are char and varchar. Char means character and varchar means variable character. इसमें क्या होता है? Let's suppose आपने char में वैल्यू और varchar में वैल्यू 10 पुट करी है. That means आपके 10 जो कैरेक्टर्स हैं, आपके 10 स्पेसेस जो है वो मेमोरी में रिजर्व हो गए हैं. But in char it is of fixed length and varchar it is of variable length. तो that means अगर आपने इन 10 कैरेक्टर्स में से 4 कैरेक्टर्स को यूज़ करा है तो बाकी जो 6 कैरेक्टर्स होंगे वो आपके फिक्स हो जाएंगे. यू कैन नॉट यूज़ दीज स्पेसेस फॉर एनी अदर स्टोरेज. बट वेरिएबल कैरेक्टर में क्या होता है, इफ़ यू हैव यूज 4 कैरेक्टर्स आउट ऑफ द 10 कैरेक्टर्स, then it will only occupy the 4 characters only. तो कैर में फिक्स लेंथ होता है, कैर इज अ फिक्स लेंथ एंड वैरचर इज अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप. दोनों ही अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प करते हैं. देन वी हैव इंटीजर. अगर हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है तो हम इंट ले सकते हैं. फ्लोट मीन्स अगर हमें डेसिमल वैल्यू लेनी है तो हम फ्लॉट ले सकते हैं. या न्यूमेरिक इज ऑल्सो डेटा टाइप, अनदर डेटा टाइप विच यू कैन यूज टू टेक द डेसिमल वैल्यूज. And the last one is whenever you want to enter some date like date of birth, date of joining, then you will use the data type date, and the format of date is this. Then first is year, YYYY, then month, MM, and then DD for the day. Now next topic is constraints. Constraints basically क्या होते हैं, कुछ restrictions लगा दिए आपने. आप क्या कर रहे हैं, attributes में specify कर रहे हैं कि इसमें इस तरह का data जो है वो enter हो सकता है. Now you want to put any restriction on the value. जो value आप put कर रहे हैं उस पर कोई restriction लगानी है आपने, तो वो आपके क्या होते हैं, constraints होते हैं. ठीक है, जैसे फ़ोन नंबर वाली फील्ड में इंडिया के लिए +91 ही यूज़ होता है. सो दिस इज़ रिस्ट्रिक्टेड. दिस इज़ द वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट वन इज़, ऑल आर इम्पॉर्टेंट बट द मेन टू कंसिडर इज़ द प्राइमरी की.
प्राइमरी की क्या होता है? द कॉलम विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड और रो इन अ टेबल। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगर आपके टेबल में लेट्स सपोज स्टूडेंट टेबल है जिसमें एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, इस तरह का डेटा स्टोर है, बट अब नेम, क्लास, मार्क्स ये सब ऐसी वैल्यूज़ हैं जो डुप्लिकेट भी हो सकती हैं। एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम हो सकते हैं या दो से ज़्यादा, दो स्टूडेंट्स के नेम सेम हो सकते हैं। तो ऐसे कौन सा कॉलम होगा जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा? सो वो हमारा, उसको हम क्या कैसे यूज़ करते हैं? एज अ प्राइमरी की। तो इस केस में यू कैन सी दैट कि एडमिशन नंबर जो होगा हर स्टूडेंट का यूनिक होगा। नो टू स्टूडेंट्स कैन हैव द सेम एडमिशन नंबर, so admission number can be used as a primary key for our table student. Now we know that SQL is a structured query language. That means हम क्या करते हैं? queries का use करके database से interact करते हैं, ठीक है। So हम यहाँ पर हमारी दो like languages होती हैं। First one is DDL, data definition language, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डेटा को डिफाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, टेबल्स को क्रिएट कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट data definition language. So first command that we have is जब भी आप SQL पे वर्क करेंगे, the first command that you need to enter is to create a database. सबसे पहले एक database create करना है। लेट्स सपोज एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट का अलग से डेटाबेस होगा, आपका डॉक्टर्स का अलग से डेटाबेस होगा, अदर स्टाफ का अलग से डेटाबेस होगा, इंफ्रा का अलग होगा, मेडिसिन का अलग होगा। सो व्हाट यू नीड टू डू? फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस। व्हाट इज द कमांड? क्रिएट डेटाबेस, एंड देन जो भी डेटाबेस का नेम आपको देना है, और हॉस्पिटल का बना रहे हैं हॉस्पिटल दे दीजिए। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट एड्रेस, एंड ऑलवेज एंड योर स्टेटमेंट विद अ सेमी कॉलन। तो अब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि लेट्स सपोज हॉस्पिटल में ये 4 डेटाबेसेस हैं, 4 डेटाबेसेस आपने क्रिएट कर लिए। अब किस डेटाबेस में आप वर्क करना चाहते हो उसको हम यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज आप डॉक्टर डेटाबेस में वर्क करना चाहते हो, तो उससे पहले आप उसको क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। सो व्हाट इज़ द कमांड? यूज़ एंड देन डेटाबेस का नेम। तो जो भी आपका डेटाबेस का नेम है वो आप लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस के विद इन वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। देन वी हैव शो टेबल्स कमांड। शो टेबल्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। अगर अभी अभी न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस में वो आपको एम्प्टी दिखाएगा, बट जैसे जैसे आप उसमें टेबल्स को क्रिएट करते जाएंगे और शो टेबल्स कमांड लिखेंगे, देन इट विल गिव यू द नेम ऑफ ऑल द टेबल्स दैट यू हैव इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस। नाउ द अनदर कमांड, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, क्रिएट टेबल। टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं इसका सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, एंड देन वी विल स्पेसिफाई टेबल का नेम, जो भी आपका टेबल का नेम होगा, एंड ब्रैकेट स्टार्ट होगी, ब्रैकेट क्लोज होगी और सेमी कॉलन लगेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3 स्पेसिफाई करेंगे। लेट्स सपोज ये है एडमिशन नंबर, ये है नेम, ये है मार्क्स, और उनका डेटा टाइप कि किस तरह का डेटा उसमें स्टोर होना है, और कोई कंस्ट्रेंट आपने लगाना है या नहीं लगाना है, प्राइमरी की लगाना है या नहीं लगाना है। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमें रिलेशंस या टेबल्स दी हुई हैं, स्टूडेंट टेबल, गार्जियन टेबल, अटेंडेंस टेबल, एंड यू कैन सी दैट वी हैव 4 कॉलम्स हियर, रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी। सो यहाँ पर हमारा किस तरह से टेबल क्रिएट होगा, लेट अस सी। सो द कमांड इज क्रिएट टेबल स्टूडेंट, देन स्टार्ट द ब्रैकेट, एंड ओके वन थिंग, यहाँ पर ये जो कमांड्स हैं ये अलग अलग लाइन में दी हुई हैं। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि इसको एक लाइन में लिख सकते हैं या अलग अलग लाइन में लिखना, लाइक इज देयर एनी specific syntax? No, you can also start from here. The main thing that we need to understand is कि जो भी आप वैल्यू लिखेंगे दूसरी वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करेंगे। सी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट टेबल and then the name of the table student, bracket start, first is roll number, first attribute आपका क्या है, ये कॉलम क्या है? रोल नंबर। और रोल नंबर में आपको कैसी वैल्यू देनी है? इंट वैल्यू देनी है, सेपरेट इट विद द कॉमा।
देन वी हैव एस नेम, वी नो दैट कि अल्फ़ाबेट्स जब भी आपको लिखने हो आप किसका यूज़ करेंगे, varchar का यूज़ करेंगे. सो varchar एंड 20. 20 इज़ लाइक द मैक्सिमम लिमिट दैट यू कैन प्रोवाइड. ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 20 लिखना है. यू कैन राइट 15, 30, 35, 40, वट एवर यू विश टू. ये डिपेंड करता है कि कितना मेमोरी आपको रिजर्व करना है आपके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए. देन वी हैव एस डेट ऑफ बर्थ. मैंने बोला डेट आपका कोई भी होगा, द डेटा टाइप वुड बी डेट ओनली. देन गार्जियन आईडी, इट इज कैर. यू कैन ऑल्सो टेक varchar. डिफरेंस मैंने बता दिया है. And you can specify any number. And then you have applied primary key on roll number. So the roll number would be considered as a primary key. That means roll number में जो values होंगी वो आपकी unique ही होनी चाहिए. अगर unique value नहीं होती then that will not accept that duplicate value. It will ask you to enter the unique value. एंड आप यहाँ पर भी प्राइमरी की लगा सकते थे. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एट द लास्ट, यू कैन ऑल्सो राइट हियर एज वेल. यहाँ पे लिखा रोल नंबर इंट एंड देन यहाँ पर आपने लिख दिया प्राइमरी की एंड देन कॉमा लगा के नेक्स्ट एट्रीब्यूट को स्टार्ट कर दिया. दिस विल ऑल्सो वर्क लाइक दिस. बोथ मेथड्स आर एक्सेप्टेबल इन एसक्यूएल. ओके, जब आपकी टेबल बन जाती है, यू वांट टू सी द फील्ड्स, क्या क्या डेटा टाइप है, क्या वैल्यूज हैं, कोई कंस्टेंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है. सो द सिंटेक्स इज डिस्क्राइब एंड देन टेबल का नेम. आप डिस्क्राइब को DESC भी लिख सकते हो एंड देन गिव द नेम ऑफ द टेबल. एंड शो टेबल्स में आप देखो, अब हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर दिया तो शो टेबल्स में आपको स्टूडेंट टेबल जो है वो विजिबल हो गया है. नेक्स्ट वी हैव ऑल्टर टेबल. ऑल्टर टेबल में क्या होता है, आपने कोई एट्रीब्यूट में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ ड्रॉप करना है, तो ऑल्टर टेबल का मतलब ही यही है कि आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है. सो व्हाट इज द बेसिक सिंटेक्स? ऑल्टर टेबल. सो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, एनी कंस्ट्रेंट, एनी एट्रीब्यूट, तो ऐड कर लीजिए. इस ऐड कीवर्ड को यूज करेंगे. कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो मॉडिफाई को यूज करेंगे. कुछ डिलीट करना है तो हम ड्रॉप का यूज करेंगे. यू कैन सी द वेरियस एग्जांपल्स हियर. I'll just show you one or two example of each category. Other examples you can read out if you wish to, and if you have any doubt you can ask in the comment box surely. सो लेट सपोज हमारी गार्जियन टेबल में हमें गार्जियन आईडी जो हमारा एट्रीब्यूट है उसमें प्राइमरी की को ऐड करना है, कंस्ट्रेंट लगाना है. सो व्हाट यू कैन डू, पहले गार्जियन आईडी पे प्राइमरी की नहीं लगी हुई थी तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल. किस टेबल को ऑल्टर करना है, गार्जियन टेबल को. व्हाट यू नीड टू डू, ऐड करना है, मॉडिफाई करना है या ड्रॉप करना है. हमें ऐड करना है. क्या ऐड करना है, प्राइमरी की. और किस कॉलम पे आपको लगाना है, गार्जियन आईडी पे लगाना है. So in this way you can use the add command to like add a primary key, or you want to add a new column. एक नया कॉलम ही आपको ऐड करना है. लेट सपोज ये इनकम कॉलम पहले नहीं था गार्जियन टेबल में, आपको एक नया कॉलम ऐड करना है. सो व्हाट यू नीड टू डू, ऑल्टर टेबल गार्जियन, ऐड इनकम एंड द डेटा टाइप. उस इनकम वाले एट्रीब्यूट में किस तरह का डेटा स्टोर होगा वो आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है. देन वी हैव मॉडिफाइड डेटा टाइप. लेट सपोज मैंने डेटा टाइप कैर ले लिया था बट आई नीड टू चेंज इट नाउ इट टू varchar. सो व्हाट आई कैन डू, मुझे मॉडिफिकेशन करनी है. ऑलरेडी डेटा टाइप इज गिवन बट आई नीड टू मॉडिफाई इट. सो व्हाट आई कैन राइट, ऑल्टर टेबल गार्जियन, मॉडिफाई जी एड्रेस varchar. सो दैट मीन्स अब मेरी जो गार्जियन टेबल है उसमें जो जी एड्रेस एट्रीब्यूट है उसका जो डेटा टाइप है वो क्या हो जाएगा, varchar हो जाएगा. पहले क्या था, varchar 30 था, अब आपने क्या कर दिया, varchar 40 कर दिया. सो जो नया वाला होगा, what you need to do is to write the new one जो आपको चाहिए. So in a similar way you can use these as well. Now remove an attribute. अगर आपको attribute को remove करना है, so what you need to do, alter table, table का name, then drop. Drop और कौन सा attribute drop करना है, let's suppose income drop करना है तो income and then semicolon. तो वो particular attribute आपका क्या हो जाएगा, drop हो जाएगा. अब drop में आपको ध्यान रखना है
कि ये तो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को ड्रॉप कर रहा था, एक सिंगल कॉलम को ड्रॉप कर रहा था, ऑल्टर टेबल वाला आपका कमांड। अब यहाँ पर दो चीज़ें और हैं, एक है आपकी टेबल, एक है आपका डेटाबेस। तो अगर आपको एक टेबल को डिलीट करना है, लेट सपोज हमने स्टूडेंट टेबल बनाई थी, उस स्टूडेंट टेबल को ही डिलीट करना है मैंने, सो व्हाट आई कैन राइट, ड्रॉप टेबल एंड देन स्पेसिफाई द टेबल नेम। इससे आपकी पूरी की पूरी स्टूडेंट टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगी। बट ये स्टूडेंट टेबल लेट सपोज स्कूल डेटाबेस में है और मुझे ये स्कूल डेटाबेस को डिलीट करना है, या पेशेंट वाली टेबल हॉस्पिटल डेटाबेस में और मुझे इसको डिलीट करना है, हॉस्पिटल का पूरा डेटाबेस ही डिलीट करना है। सो व्हाट आई कैन राइट, ड्रॉप डेटाबेस एंड देन स्पेसिफाई द डेटाबेस नेम। सो यू कैन यूज दिस commands to drop the table and databases. नाउ अभी तक हमने क्या करा, टेबल को क्रिएट कर लिया, कॉलम्स को स्पेसिफाई कर दिया, डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया। अब वैल्यूज को एंटर करना है, वैल्यूज अभी तक हमने एंटर नहीं करी है। सो द बेसिक कमांड दैट वी नीड टू यूज इज इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। कैसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, यहाँ पे लेट सपोज स्टूडेंट टेबल है, एंड वैल्यूज, वैल्यूज वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम के नेम लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आप उसकी वैल्यूज लिखते रहेंगे। I'll show you this in MySQL. Let's suppose I'm using the database. Suppose my database name is 1 and I'm using this database. Uh, then I'm creating table. Let's suppose create table shop. You can take any name. I'm just giving you a random example how to create table and then how to insert the values. The main thing is how to insert the values. Suppose shop may we have like groceries, and I'm giving the data type varchar. Then we have, let's suppose, date of purchase. ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आप जो है वो स्पेस नहीं दे सकते हैं अपने। लेट्स सपोज मैं डेट ऑफ परचेज लिख रही हूँ, सो देयर आर 3 वर्ड्स हेयर, आई कैन नॉट गिव द स्पेस। अगर आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना है, आइदर यू कैन यूज एन अंडरस्कोर और जस्ट डोंट गिव अ स्पेस। डेट ऑफ परचेज एंड डेट कोई भी हो, आपका एट्रीब्यूट क्या हो, आपका डेटा टाइप क्या होगा, डेट होगा। लेट्स सपोज क्वांटिटी, क्वांटिटी का डेटा टाइप आपका इंट होगा। सो ये हमारे कॉलम्स है लेट्स सपोज, ठीक है। यहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, जब वैल्यूज इंसर्ट करना है तो जिस सीक्वेंस में मैंने कॉलम्स को इंसर्ट करा है उसी सीक्वेंस में मुझे वैल्यूज को इंसर्ट करना है। सो व्हाट इज द कमांड, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है, शॉप, एंड देन वैल्यूज। सो फर्स्ट आपका क्या है, ग्रोसरीज है। सो फर्स्ट लेट सपोज वी हैव फ्रूट्स, ओके। सो फ्रूट्स है, एंड देन वी हैव डेट, date of purchase. Let's suppose this is the date of purchase, and then we have the quantity. Let's suppose we say 100 kg, 100 int लिया है तो आपको 100 दे दिया let's suppose, and semicolon and enter. You will see that कि first row आपकी क्या हो गई है, insert हो गई है। In a similar way what you can do is you just change the values, and if you wish to, otherwise take it as it is। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू दैट जिस सीक्वेंस में आपके कॉलम्स के नेम होते हैं उसी सीक्वेंस में आपकी वैल्यूज जनरेटेड होनी चाहिए। सो इन दिस वे यू कैन इंसर्ट ऑल द वैल्यूज। अभी आपकी 2 वैल्यूज इंसर्ट हुई हैं। इन अ सिमिलर वे यू कैन इंसर्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ योर टेबल। नाउ we are going to learn the most basic and the most important statement, that is the select statement। अब select statement में क्या होता है, आपको क्या करना है, लेट सपोज आपने स्टूडेंट का टेबल बनाया जिसमें आपके 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो अब आपने सभी स्टूडेंट्स के डेटा को डिस्प्ले करना है। तो व्हाट इज़ द बेसिक कमांड, जब आपको सभी दिखाना है, जितनी भी वैल्यूज है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, आपको वो सभी डिस्प्ले करना है, तो आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपका टेबल का नेम होगा। लेट्स सपोज आई टेक इट शॉप हेयर,
तो शॉप में देखो मेरी 2 वैल्यूज थी, तो सभी डिस्प्ले हो गया, ठीक है। बट लेट सपोज आई वांट टू प्रोवाइड अ कंडीशन कि मुझे सिर्फ लाइक वही ग्रॉसरीज का नेम चाहिए या डिटेल चाहिए जिनकी क्वांटिटी 50 से ज़्यादा है। सो व्हाट आई कैन राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉप वेयर। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वेयर क्लॉज का यूज कर रही हूँ। वेयर क्लॉज क्या कह रहा है, कंडीशन स्पेसिफाई कर रही हूँ मैं, वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50। एज यू नो दैट यहाँ पर 2 ही वैल्यूज हैं और ग्रेटर देन 50 की एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ ये वाला कॉलम आ गया है। तो दिस वेयर क्लोज इज यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन। कंडीशन अगर आपको स्पेसिफाई करनी है तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा, और ऐसा नहीं है कि आपको सेलेक्ट स्टार ही लिखना है, सारी वैल्यूज लिखनी है। लेट सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे सेलेक्ट सिर्फ ग्रॉसरीज लिख दिया, तो इससे क्या आएगा, सिर्फ ग्रॉसरीज कॉलम ही आपके पास आएगा, सिर्फ ग्रॉसरी कॉलम ही आपके पास आएगा। तो अगर आपको सभी कुछ डिस्प्ले करना है तो अप्लाई करो स्टार को। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम डिस्प्ले करना है तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम भी लिख सकते हैं, या हम एक से ज़्यादा कॉलम्स भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डेट ऑफ परचेज भी शो करना है, तो यस आप कॉमा लगाकर उसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, द परचेज की स्पेलिंग ऊपर रॉन्ग हो गई है, तो दैट इज वाई इट इज नॉट टेकिंग इट। अब मुझे रॉन्ग वैल्यू ही लिखना पड़ेगा। सी सो यहाँ पे ग्रॉसरीज और डेट ऑफ परचेज आपका विजिबल हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू टेक इज, ये मैंने आपको बता दिया, कोई स्पेसिफिक कॉलम आपको सेलेक्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं हम। रीनेमिंग ऑफ कॉलम, रीनेमिंग कैसे कर सकते हैं, लेट सपोज मुझे यहाँ पर डेट ऑफ परचेज को ओनली डेट दिखाना है, तो व्हाट आई कैन राइट, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉप or we can specify a single column. ग्रॉसरीज को आप कैसे लिख सकते हैं, या तो आप सिंगल कोट्स में उसको स्पेसिफाई कर दो। लेट सपोज मैंने ग्रॉसरीज को GORC लिख दिया बस, फ्रॉम शॉप, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपने सिंगल कोट्स में स्पेसिफाई करा है उसका नेम चेंज होकर वो आ जाए। You can see the example, select ename as name। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका ई नेम को टेबल में एट्रीब्यूट का नेम क्या है, ई नेम, पर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। सिमिलरली आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं, सेलेक्ट ग्रॉसरीज, और सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह से ग्रॉसरीज को ग्रॉस लिख दिया हमने सिंगल कोट्स में, या आप एज कीवर्ड का यूज कर सकते हो। या तो आप सिंगल कोट्स लगाइए जो भी आपको नेम देना है अपनी टेबल में, या फिर आप एज कीवर्ड का यूज कीजिए जिससे आप अपने कॉलम के नेम को रीनेम कर सकते हैं। These are the similar examples. Then we have distinct clause. Distinct clause में क्या होता है, let's suppose आपके पास मार्क्स है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ रहे हैं, 26, 25, 25, 24, 26, एंड यू वांट टू नो द डिस्टिंक्ट वैल्यू कि ये सभी तो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, पर डिस्टिंक्ट कौन कौन सी वैल्यूज हैं, मतलब कौन कौन से मार्क्स स्टूडेंट्स के आए हैं। सो व्हाट यू कैन राइट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट whatever the name of the column जिस पे भी आपने डिस्टिंक्ट लगाना है फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आप ये देखेंगे कि चाहे एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट ID 2, 1, 4, चाहे वो 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितने नंबर ऑफ भी टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट डजेंट मैटर, इट विल ओनली शो यू कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज कौन कौन सी हैं आपके डिपार्टमेंट की। वेयर क्लोज आई हैव स्पेसिफाइड यू कि आपको स्पेसिफिक कंडीशन अगर लगानी है डेटाबेस पे तो आप वेयर क्लोज का यूज कर सकते हो। लेट सपोज हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी, यानी सैलरी क्या दिखानी है मुझे, डिस्टिंक्ट दिखानी है, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर 1, 2, 3, 4, 5 डिपार्टमेंट है तो मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट 1 की ही एम्प्लॉय ID सॉरी डिस्टिंक्ट सैलरी चाहिए। दैट मीन्स आई हैव स्पेसिफाइड द कंडीशन कि डिपार्टमेंट तो बहुत सारे हैं, दैट्स ओके,
but I want to know the salaries of only department 1. So where clause can be used to specify the condition. आप यहाँ पर इस तरह से भी लगा सकते हैं, सैलरी ग्रेटर देन 5000 एंड डिपार्टमेंट आईडी दिस. सो दैट मीन्स आप मल्टीपल कंडीशंस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट जो सिर्फ डिपार्टमेंट 4 हो एंड जिसमें सैलरी 5000 से ज़्यादा हो. सो मल्टीपल कंडीशंस कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन द वेयर क्लोज. एंड नॉट भी लगा सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट ई नेम इज इक्वल्स टू आलिया, यानी कि जिसका ई नेम आलिया नहीं है बाकी सब डिस्प्ले कर दो. अगर मैं यहाँ पे नॉट नहीं लगाती तो सिर्फ आलिया का रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले होता, पर यहाँ पर हमारे पास क्वेरी में नॉट है. सो दैट मीन्स आलिया, leave the details of the आलिया and show the details of all other employees. You can also specify like this, salary greater than equals to 20,000 and salary. जब इस तरह से आपको एंड लगाकर कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो कॉलम का नेम है आपको उसको ट्वाइस लिखना है. यहाँ पर लिखा सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000 एंड अगेन द नेम ऑफ द कॉलम सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 50,000. स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000 एंड 50,000. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कॉलम का नेम है वो 2 बार ही स्पेसिफाई होगा. बिटवीन भी लगा सकते हैं. अगर आपने ये अप्लाई नहीं करना, ग्रेटर देन लेस देन अप्लाई नहीं करना, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो अप्लाई बिटवीन एंड. सो बिटवीन 20,000 एंड 50,000, जिसमें 20,000 से 50,000 की सैलरीज आएंगी इंक्लूडिंग बोथ. 20,000 भी इंक्लूडेड होगा, 50,000 भी इंक्लूडेड होगा एंड ऑल अदर वैल्यूज विच लाई इन बिटवीन दिस रेंज. Membership, you can read out some concepts, you can read out. Then we have order by clause. This is very important, ये हमारे 12th के सिलेबस में भी कंसिडर्ड है. ऑर्डर बाय क्लोज से हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अपने डेटा को शो करते हैं. दैट मीन्स हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग कर देते हैं डेटा की. एंड दैट सॉर्टिंग कैन बी डन इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये टेबल है आपकी, आपने क्या करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी, यानी कि सैलरी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में. अब ऑर्डर बाय सैलरी नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है. तो सैलरी आप यहाँ पे देखोगे सबसे मिनिमम, देन उससे हाईएस्ट, देन उससे हाईएस्ट, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके सैलरी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटाबेस जो है वो उसी तरह से डिस्प्ले हो गया है. बट वट अबाउट इफ यू वांट टू शो इट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी. और अगर डिसेंडिंग में करना है तो आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है DESC, जो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हाईएस्ट सैलरी को एट द टॉप एंड मिनिमम सैलरी को एट द बॉटम आपको शो कर देगा. नल मैंने आपको बताया है, नल क्या होता है, एक मिसिंग या अननोन वैल्यू होती है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है. नल जो है वो जीरो से डिफरेंट होता है. नल इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नल इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. जीरो तो एक वैल्यू है ना, स्पेसिफिक वैल्यू है. जीरो नंबर ऑफ यूजर्स, तो आई नो द नंबर ऑफ यूजर्स आर निल. बट इफ यू टॉक अबाउट नल, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है, ऐसी वैल्यू है जिसका हमें पता ही नहीं है. तो अगर आप किसी वैल्यू में नल को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर वुड बी नल, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपको 5 में क्या ऐड करना है. ठीक है, सो यहाँ पर हम नल को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल, यानी ऐसे एम्प्लॉयज जिनको बोनस में नल वैल्यू है वो आपको एम्प्लॉयज का डिटेल्स जो है वो आपको शो कर देना है. देन सबस्ट्रिंग मैचिंग इज ऑल्सो लाइक इम्पॉर्टेंट. सबस्ट्रिंग मैचिंग में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लेट्स सपोज यू नीड टू फाइंड आउट द नेम ऑफ सम एम्प्लॉई, और आपको पूरा नेम नहीं पता होता, यू नो ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, या आपको फर्स्ट नेम पता होता है, सर नेम नहीं पता होता, या आपको ये पता है कि ये पर्टिकुलर पिन कोड इसके बीच में लाई करता था, मतलब आपको वैल्यूज अच्छे से ध्यान नहीं है. ठीक है, आपको थोड़ा बहुत द आइडिया है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज दिस पैटर्न मैचिंग. एक होता है परसेंटेज से और एक होता है अंडरस्कोर से. किस तरह से अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज आपको क्या करना है, द फॉलोइंग क्वेरी डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट्स विद के. आपको ऐसे एम्प्लॉयज के नेम चाहिए जिसका फर्स्ट लेटर जो है वो के है. ठीक है, तो के से कुछ भी हो सकता है.
तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, अब ये ध्यान देना है, स्टूडेंट्स कैसे लिख देते हैं, वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू के, दिस इज रॉन्ग। हमें कैसे लिखना है, वेयर ई नेम लाइक, सिंगल कोट्स में कहाँ से स्टार्ट होगा, के लेटर से स्टार्ट होगा, उसके बाद आप अप्लाई करोगे परसेंटेज एंड देन इसको एनक्लोज करोगे, बिकॉज के से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद परसेंटेज है, दैट मीन्स आई डू नॉट नो द अदर करेक्टर्स, the name should be, must be, we will say must be starting from the letter K, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, करण हो गया, कृतिका हो गया, केशव हो गया, any name you can take and then it will show you all the names। और अब हमें ये है कि लेट सपोज स्टार्टिंग के से हो रहा था, अब नाउ आई नो कि एंडिंग जो है वो ए से हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, आप परसेंटेज का साइन पहले लगा सकते हैं और फिर आपका जो लास्ट का करेक्टर है, लेट सपोज लास्ट में ए आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लास्ट में ए आए उससे पहले कुछ भी हो जाएगा, तो आल्या, कृतिका, सान्या, दारिभा, तान्या, आपने देखा सब में लास्ट में ए आ रहा है, पहले क्या करेक्टर्स हैं दैट डजंट मैटर, सो दिस इज द यूज ऑफ द परसेंटेज साइन। अंडरस्कोर कैसे यूज होता है, लेट सपोज यू नो सम कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स आपके मिसिंग है, लेट सपोज आपके यहाँ पे अन्य है आपके पास, उससे पहले आपने एक कैरेक्टर छोड़ दिया, सो दैट मेक सेंस विद सान्या एंड तान्या, जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज के नेम थे, तो आप सिंगल अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो, अगर आपको लगता है एक कैरेक्टर है, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उतने अंडरस्कोर्स आप यूज कर सकते हैं। अब अनदर इम्पॉर्टेंट कमांड, अब आपने क्या करा, टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, अब वैल्यूज में लेट सपोज आपको कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए हमारी अपडेट कमांड यूज होती है। ध्यान रखना है कि अपडेट कमांड जो है वो डेटा में चेंज करने में हेल्प करता है। हमने पहले ऑल्टर कमांड पढ़ा था जिसमें हमने ऐड करा था, मॉडिफाई करा था, ड्रॉप करा था, बट वो जो ऑल्टर कमांड लग रहा था वो टेबल के स्ट्रक्चर पे लग रहा था, कॉलम्स के नेम पे लग रहा था, बट अगर आपने डेटा को ही चेंज करना है, वैल्यू को ही चेंज करना है, तो आप अपडेट कमांड का यूज करेंगे। किस तरह से करते हैं, अपडेट, देन राइट द नेम ऑफ द टेबल, स्टूडेंट, सेट, क्या सेट करना है, लेट सपोज गार्जियन आईडी मुझे चेंज करनी है, किसकी गार्जियन आईडी चेंज करनी है, वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 3। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यही हमारा अभी, आई टेक द ग्रोसरीज टेबल अगेन, बट उससे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लिखेंगे अपडेट, let us take another example, so let us consider this table, I have taken the table stream and you can see that there are 3 values in this, and let's suppose I want to change the stream of the student code 1 from science to humanities, तो आप कैसे लिखेंगे, update, what is the name of the table, stream, देन राइट सेट। अब आपको क्या सेट करना है, यहाँ पे सेट करना है स्ट्रीम इज इक्वल्स टू जो भी आपकी न्यू वैल्यू है ह्यूमैनिटीज। अब अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये सभी, इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई बाय यूजिंग वेयर क्लोज, तो ये जितनी भी स्ट्रीम होंगी सबको क्या कर देगा, ह्यूमैनिटीज़ कर देगा। बट आपको क्या करना है, सिर्फ स्टूडेंट आईडी 1 जिसका है उसी की स्ट्रीम को ह्यूमैनिटीज़ करना है, तो आप क्या लिखोगे, वेयर st code is equals to S01, then it is saying rows matched, change हो गया। Now write the command select star from stream to show all the values, then you will see that कि S01 स्टूडेंट का जो स्ट्रीम है वो ह्यूमैनिटीज में चेंज हो गया है। तो इससे अपडेट कमांड से आपकी वैल्यूज चेंज होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। देन डेटा को डिलीट करना है तो यू कैन राइट डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, अब डिलीट करना है और कंडीशन स्पेसिफाई कर दो कि रोल नंबर 2 का डेटा डिलीट करना है, स्टूडेंट आईडी 1 का डेटा डिलीट करना है, सो यू कैन यूज दिस एज वेल।